So we were discussing about the endocrine glands. What is endocrine gland? Guys, endocrine gland क्या होते हैं? मैम that secretes hormones directly into the blood. मतलब Right. जिसमें जो डक्टलेस डक्ट नहीं होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, डक्ट नहीं होते हैं, दे आर डक्टलेस. So डक्टलेस basically the endocrine system is a group of gland or organs that makes the hormones or chemical which control the important activities in your body, and hence it is also called as hormonal system, right? Hormonal system बोल सकते हैं ना, because it is also like secreting hormones. The main function is to control the body function, so it is responsible for the various process, generally for the growth, metabolism, and reproduction, right? These are the main processes for any kind of a individual for a smooth functioning. एक basic specific role है जो अच्छे से perform किया जाता है endocrine की help से. Now talking about कि endocrine gland जो है हमारा, उसमें हमने कौन कौन से glands के बारे में already पढ़ चुके हैं. Again we are revising P, T, P, T, O, A, and H. P stands for pituitary gland. gland T stands for thyroid gland. thyroid P stands for again pancreas. T stands for testes. O stands for ovary ovaries. A stands for adrenal. S stands for hypothalamus. Right? Hypothalamus. We have already studied about the pituitary gland and the thyroid gland. So, is there any need to revise this? no So, ma'am we are हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं. Pituitary gland क्या होता है? It is the small gland and also called as a master gland. Master gland, and hence when you see the term hypophysis is used for what? Pituitary gland. जहां पे भी तुम हाइपोफिजिस लिखा हुआ देखोगे, दैट्स मीन कि वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको पूछ रहा है. क्लियर? इतना दो तुमने पढ़ा ही था. पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या? ये आपका बेस है किसका? ब्रेन का, जिससे सारे हार्मोन की सिक्रीशन हो रही है. यू कैन से बैलेंस हो रहा है. इन शॉर्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मास्टर ऑफ अ ग्लैंड. मास्टर ऑफ अ ग्लैंड, because that regulates many of the endocrine gland. For example, thyroid gland को ये regulate करता है, adrenal को ये regulate करता है, ovaries को ये regulate करता है for reproduction, and testis को ये regulate करता है. अब बात करें इसको, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सारी कमांड आती कहाँ से है हमारी? डेफिनेटली सी बात है, हाइपोथैलेमस से. Then only it is able to perform all the function, right? So hypothalamus makes sure that the pituitary gland secretes hormone in smooth function directly to the body without involving other glands. इसका मेन काम ये होता है. अब बात करें कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं रिलीज हाइपोथैलेमस जो हमारा बनाता है, दैट इज GHRH, which is also called as a growth hormone releasing hormone. And second is TRH, which is also called as a thyrotrophin releasing hormone. Next is a CRH, which is also called as a corticotrophin releasing hormone. Then GnRH, which is a gonadotropin releasing hormone. And hence main one is oxytocin, which I have already elaborated, and dopamine. And the other one, antidiuretic hormone. We have studied in the vast detail of that already, right? What is antidiuretic mean?
It is also called as a vasopressin. As a name suggests, the vessel has been suppressed. Suppose this is a vessel and that has been suppressed so that it will not, ये क्या करेगा, तुम्हारे जो एक्स्ट्रा यूरिन है ना, जो तुम्हारा फिल्टर हो रहा है, उसको स्टोर करके रखेगा, मीन्स उसको होल्ड करने की रिटेंशन पावर रखेगा, जिससे कि आपको अर्ज ना हो यूरिनेशन की। डायरेटिक क्या होते हैं, जो आपकी यूरिन की फ्लो को बढ़ा देते हैं। एंटी डायरेटिक जो उसकी यूरिन की फ्लो को कम कर देते हैं। जनरली यू रिक्वायर्ड इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडियस। डायबिटीज इंसिपिडियस में क्या होता है बेटा, जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से यू आर हैविंग अर्ज अगेन एंड अगेन। सो कंट्रोलिंग द अर्ज ऑफ यूरिनेशन यू रिक्वायर द एंटी डायरेटिक हार्मोन इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट, वेसोप्रेसिन। क्लियर टू एवरीवन? इतना पता है गाइस सबको? इसमें कोई डाउट? हेलो हेलो फार्मडी। नो मैम। यस मैम। ठीक है, अब बात करें कि ये तो हमने देख लिया कि ये हाइपोथैलेमस हमारे ये हार्मोन बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाता है, ये भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन, डेफिनेटली कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाइट कितनी होगी, क्या होगा। सेकेंडरी, ये हमारा सेकेंडरी टीएसएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मैंने थायराइड में डिटेल में बताया था। प्राइमरी कौन सा है, टीएसएच इटसेल्फ। सेकेंडरी कौन सा है, पिट्यूटरी। एंड उसका आपका टर्शरी कौन सा है, बताओ, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से कमांड दे रहा है ना बेटा, तो हाइपोथैलेमस आपका टर्शरी है। इसके बाद हमारा एफएसएच विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारा क्या है, जो मंथली साइकिल्स होती है ना, तो ओव्यूलेशन का टाइमिंग ये सब मेंटेन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, माहिन? यस मैम, एफएसएच उसकी रेगुलेशन के लिए फॉलिकल इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? आई गेस ये प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन प्रेगनेंसी में अगर जैसे ल्यूटिनाइज वो प्रोलैक्टिन होता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, वंस इफ यू गोट लाइक इफ यू हैव कंसीव्ड, देन उसको रेगुलेशन में मेंटेन करने के रखने का काम किसका होता है, ल्यूटिनाइजिंग का। अगर कंसीविंग नहीं होती है तो वो जितने भी क्या होते हैं, श्रेडिंग होके सारा ब्लड के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। क्लियर टू एवरीवन? एंड इसका आगे Yes. मेन फंक्शन क्या है जो हाइपोथैलेमस इंक्लूड करता है, अगेन ऑक्सीटोसिन का, जो दैट इज यूज फॉर द लेबर पेन एंड वेसोस्प्रेसिन, वेसस को प्रेस करके रखना। क्लियर? अब बात करें कि एंडोक्राइन के जो ग्लैंड्स है, अदर ग्लैंड, उनका काम क्या होता है। वी हैव स्टडीड अबाउट द थायराइड। अब थायराइड का अगर आप कभी भी प्राइमरी टेस्ट करवाने जाते हो, यू विल गो फॉर द टीएसएच ऑलवेज, राइट। टीएसएच की अगर आपकी एफिकेसी इंक्रीज है, दैट मीन्स द पेशेंट इज अ हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट। अगर यही आपका क्या है, टीएसएच की एफिकेसी, टीएसएच की एफिकेसी आपकी क्या है, लो है, वैल्यू मीन्स नॉर्मल रेंज होती है आपकी 5 टीएसएच की। अगर टीएसएच का 5 से कम है और ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है दैट पेशेंट इज अ हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म। अब टीएसएच का क्या वैल्यू अगर कम है, पास है, देन यू विल सी द पेशेंट इज अ हाइपरथायराइडिज्म। बहुत ही पतला होगा, उसका फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, उसको क्या है, इरिटेशन ज्यादा होगी, स्वेटिंग ज्यादा होगी, हर चीज मीन्स एक्सेस, हार्ट रेट ज्यादा होगी। एंड वेयर इज, आप इसको है ना, जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट है ना, यू कैन सी कि ये क्या आपके होते हैं, आपके ये रैबिट होते हैं, मीन्स खरगोश की तरह भागने वाले। एंड वेयर इज द हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट आर आपके क्या होते हैं, वो टर्टल होते हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलते हैं, मीन्स उनका हर फंक्शन स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो, एंड इवन तो उनका जो वो ब्लड प्रेशर भी क्या है, वाइटल सारे डाउन ही रहते हैं।
ठीक है, तो ये तो था हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपर मींस एक्सेस में। आप सोच रहे हो कि इसकी वैल्यू बढ़ी हुई क्यों नहीं है? वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ी हुई क्योंकि टीएसएच, अब देखो, अब इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जो आपका ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, उसका मेन काम क्या होता है? देखो, अब पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं पीटी लिख रही हूँ, इट मींस पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका, वो कमांड दे रहा है किसको? आपके थायराइड को कमांड दे रहा है भाई कि तेरे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, उसकी सिक्रीशन कर। तो वो उसकी सिक्रीशन करता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अब सिक्रीशन ये टीएसएच स्टिमुलेट ज्यादा करता है बट स्टिमुलेट हो नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या है, जो मेन इसका T3 विच इज अ ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, T4 कम रहता है और टीएसएच एक्सेस मात्रा में चला जाता है। सो इसका है कि आप पेशेंट को पहचान सकते हैं कि ये आपके हाइपोथायराइडिज्म के है। अब इसी का रिवर्स कर दे कि आपको बोले कि पिट्यूटरी ग्लैंड भाई बहुत ज्यादा आपका थायराइड बन रहा है, तो टीएसएच को कमांड देता है कि आप कम करो। ये रिलीज कम करता है बट ये T4 और T3 एक्सेस मात्रा में ऑलरेडी होता है, जिस वजह से पेशेंट को हम डायग्नोज करते हैं एज अ हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, इतना किसी को डाउट? हेलो? नो मैम। हेलो। अब इसके साथ एक और होता है थायराइड के साथ, कैल्सिटोनिन। एज अ नेम सजेस्ट, कैल्सिटोनिन मींस कैल्शियम की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी फ्रीली आपका कैल्शियम घूमेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। किस लिए? आपकी जो बोन्स की ग्रोथ होती है ना, उसके ऊपर डिपोजिशन करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए कैल्सिटोनिन क्या कर लेगा, सारे ब्लड को ले लेता है। और जैसे टीथ्स में भी आपका कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, बोन्स को टेंडेंसी देने के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, तो वो सारा कैल्शियम कहाँ से आता है? कैल्सिटोनिन से। फिर इसी के साथ में एक और ग्लैंड होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है आपके नेक के पास, जो आपका थायराइड का ग्लैंड होता है ना, इसी के जस्ट आगे वाला स्ट्रक्चर होता है, इसी के पास ही ऐसा लगा होता है। अब इसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है? जितना भी आपका कैल्शियम फ्रीली मूव कर रहा था ना, सारा कैल्सिटोनिन ले लेगा तो बॉडी के अदर पार्ट्स को भी तो रिक्वायर्ड है ना। तो वो क्या करता है, वापस से कहता है कैल्सिटोनिन को कि भाई तू इनको फ्री कर, ताकि वो बॉडी के अंदर बैलेंस कर सके कैल्शियम को। ठीक है, इसका मेन काम होता है टू बैलेंस आउट द कैल्शियम इन योर ब्लड स्ट्रीम। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? पेनक्रियास की। अब पेनक्रियास का मेन काम क्या होता है? टू सीक्रेट द इंसुलिन, राइट? इंसुलिन बनाना। अब इंसुलिन बनाने की जरूरत क्या है? जो भी आप खाएंगे, दैट सर्टेन प्रोडक्ट कंज्यूम द ग्लूकोज, टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज व्हाट you required insulin. So for that it will go under the process of glycolysis. अब पेनक्रियास का मेन काम क्या होता है? अब ये एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या है, एक्सोक्राइन और एंडो की तरह, दोनों की तरह काम करता है। Why? Because it control the blood sugar level and digestion also. अब ब्लड शुगर लेवल का काम तो आपका बीटा सेल्स पे आ जाएगा, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं उसके थ्रू। अब ये इंसुलिन के साथ क्या क्या बनाता है आपका? इंसुलिन के साथ ही आपका बनाता है वीआईपी। वीआईपी क्या है आपका? वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये आपका ये वीआईपी बनाता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? आपकी जो इंटेस्टाइनल्स के अंदर पेप्टाइड्स और एंजाइम की सिक्रीशन को बैलेंस आउट करना। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इतने में? हेलो? तो मैम ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है पैनकेस के साथ पीछे की तरफ कौन से होते हैं? किडनी, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड का देखो स्ट्रक्चर, जो किडनी होती है ना बेटा,
किडनी के ऊपर वो जो बने से होते हैं, त्रिकोने से बने होते हैं, वो ये होता है एड्रिनल ग्लैंड आपका। अब इसका स्मॉल ट्रायंगुलर शेप सा है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला, है ना? कोर्टेक्स और मेडुला, तो इससे नेम याद रह जाएगा। अब कोर्टेक्स और मेडुला जो है, अब अब एड्रेनल ग्लैंड आपके कौन-कौन से हार्मोन बनाता है? आपकी सिक्रेट करता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों? कोर्टेक्स इन्वॉल्व है, तो देयरफॉर स्टेरॉइड भी ये प्रोड्यूस करता है। एंड सेकंड इसका मेन काम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्पेलिंग देख लेना। एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सिमिलरली आपके क्या है, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने का काम होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने का काम होता है। अब बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यू ऑल आर वेल अवेयर कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये कॉर्टिको रिक्वायर्ड है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, मिनरलो मींस इट कंट्रीब्यूट मिनरल्स, राइट? अब जितने भी हम कोर्टी मतलब स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, उनका काम क्या होता है? वो सोडियम को रिटेंट करके रखता है। इट मींस वो स्वेलिंग करके रखेगा। जहां पे भी आप स्टेरॉइड कंज्यूम करेंगे वो इंसान हेल्दी होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सोडियम को आपकी सेल्स के अंदर रिटेन करके रखेगा। देयरफॉर द पर्सन विल बी ऑलवेज हेल्दी, मींस फैट। अब इसका ये रीजन है कि जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो फैट क्यों होते हैं? क्योंकि सोडियम को वो रिटेन करके रखता है। अब सोडियम को रिटेन करके रख रहे हैं, इसका मतलब वो इंसान पतला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इफ दे आर ऑन अ क्रोनिक डिसीज एंड कंज्यूमिंग स्टेरॉइड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है? जो आपके स्टेरॉइड से आपका सोडियम रिटेन हो रहा है सेल्स में, उसमें से क्या करना, रिटेंशन को मेंटेन करके रखना ताकि इतनी एक्सेस में ना हो और उससे मिनरल आपको मिले जो आपको फंक्शन। मीन्स देखो क्या होता है कि हम है ना हमेशा दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि एक तो डिसीज कितनी खराब है और दवाइयों को कितना साइड इफेक्ट्स है। अगर साइड इफेक्ट्स माइनर से होते हैं लाइक फैट एंड ऑन ऑल दिस थिंग्स, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। वेयर द डिसीज अगर उसकी ज्यादा क्रॉनिक होती है, सपोज करो अस्थमा के पेशेंट में जनरली यू आर सीइंग, आप देखोगे आगे प्रैक्टिस के टाइम में दैट पेशेंट विल ऑलवेज टेक द स्टेरॉइड। कारण क्या है कि वो उनके लंग्स की जो एल्वोलाई है ना, अब उसका क्या एक्सचेंज आपका ऑक्सीजन का हो रहा है और किसका हो रहा है, CO2 का हो रहा है। तो उनका ऑटोमेटिकली सी बात है कि जब भी O2 जाएगा ना उसके अंदर, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वो रिटेंशन करेगा ही। क्योंकि देखो O2 भी जाके अल्टरनेटिवली ब्लड के साथ मिलेगा तो वो फ्लूइड की तो रिटेंशन करेगा ही ना, फ्लूइड में तो जाके मिलेगा ही ना, तो वो उसको हमेशा इकट्ठा करके रखता है, सेल से बाहर जाने नहीं देता है। जिस वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है, आपके सोडियम को रिटेन करके रखते हैं, तो उनसे मिनरल्स को लेना, ठीक है, जो उस टाइम पे उसको रिक्वायर्ड है। इतने में किसी को कोई डाउट? मैम लेकिन इसके मेन हार्मोन्स है ना, एड्रेनलिन, वो इसी कॉर्टिसोल के और अंदर पार्ट है। सुनो, जो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल है ना, उनका तो मेन काम क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके रखना। वो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। अब उनका ट्रिपल F का काम होता है कि जब भी आप फ्लाइट फियर उसमें मोड में होते हैं तो वो सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या सिक्रेट होती है, ये इसके मतलब सेकेंडरी फंक्शन है। जो प्राइमरी फंक्शन है उसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन का है, जो आपका क्या है, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस को मेंटेन करके रखते हैं, इन तीनों चीजों की वजह से। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट? गाइस, हेलो? नो नो मैम। मैम। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन का आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, उनके फेस पे क्या है, हेयर्स आ जाते हैं, आवाज उनकी क्या है, वोकल कोड टफ हो जाते हैं, यू कैन से मर्दों जैसी आवाज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फीमेल हार्मोन है,
फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से उनको समटाइम पीसीओडी ऐसी लाइक दिक्कत भी होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसका डिसबैलेंस और यू कैन से रेगुलेशन खराब होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है ना? देखा होगा तुमने। सब मोटा मोटा बात करें, एड्रेनल ग्लैंड का काम क्या होता है? टू मेंटेन द स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, बिकॉज फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी का, है ना? एंड ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड का इसके अंदर काम आपको पता ही है, एज नेम सजेस्ट कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, तो वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गया। कोर्टिकोइड्स मींस स्टीरॉइड्स, जो आपकी बॉडी में क्या है, एक सर्टेन टाइम तक एक्यूमुलेट करके रखते हैं सोडियम को, एंड सिमिलरली जो आपकी बॉडी को एट ए टाइम रिलीव करते हैं, बट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इट कैन हार्म योर बॉडी in every aspects. Now next is testes. Testes is a male reproductive what hormone, right? That makes the sperms Gonad. after puberty, right? अब इसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है, एंटी मेलरिन हार्मोन बनता है। अब इनका मेन काम क्या होता है? ये आपके जो टेस्टिस होता है ना, ये आपके दो होते हैं, जो आपको किस पार्ट में मिलता है? स्कॉटम के पार्ट में मिलता है। इसमें एमसीक्यू आ सकता है। स्कॉटम के पार्ट में आपको दो टेस्टिस के ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे प्यूबर्टी के बाद एक्टिवेशन में आके स्पर्मेनोजेसिस की प्रोसेस से स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं ओवरीज की। ओवरीज आर फाउंड इन द फीमेल, सिमिलरली दे आर टू, दो ग्लैंड्स होते हैं जो कि वोम की हर साइड में होता है, लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना इसका, काइंड ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये ओवरीज का स्ट्रक्चर जो है। अब इसमें मेन आपका क्या है? हार्मोन बनते हैं आपके ओजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन, मैम प्रोजेस्ट्रॉन। टेस्टोस्टेरोन। हाँ, प्रोजेस्ट्रोन भी तो बनेगा ना बेटा, जब प्रेगनेंसी वगैरह का टाइम होगा, और नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी तो बनता है। सी फीमेल बॉडी हैज अ लॉट ऑफ हार्मोन, तभी तो वो चीजें होती है ना कि फीमेल बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट क्यों आता है। फीमेल बॉडी पे इसलिए ज्यादा इफेक्ट आता है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी सारे हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। इट जस्ट दैट कि गलत टाइम पे गलत चीज एक्टिवेट ना हो जाए। बट देयर मेन फंक्शन है जो ओजेस्ट्रोन का होता है टू स्टोर एंड रिलीज एग्स एंड मेक द हार्मोन ड्यूरिंग द प्यूबरिटी एंड रिप्रोडक्शन। हार्मोन तो फीमेल बॉडी में सारे ही होंगे, तभी तो वो सारे सिम्टम्स भी आते हैं। नहीं तो अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन हो ही ना, तो आपके क्या जो जर्नल बेसिक रिक्वायर्ड भी है बॉडी की, वो कहाँ से पूरी होएगी? सर्टेन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपको रिक्वायर्ड भी तो है एनर्जी के लिए। बताओ, बोलो बोलो, कहाँ से आएगी एनर्जी? यस मैम। क्या? एनर्जी कहाँ से आएगी फीमेल बॉडी में? बोलो। मैम लिवर मेटाबॉलिज्म। लीवर में मेटाबॉलिज्म, क्या टेस्टोस्टेरोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सर्टेन लेवल पे जिम जब आप जाते हो, एक बार बताओ, जितने भी आप प्रोडक्ट्स लेते हो उनमें क्या होता है? कैफीन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज नहीं करता है? बताओ। यस मैम। फिर फीमेल बॉडी में हर हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जस्ट दैट दे नीड टू एक्टिवेट अ सर्टेन टाइम पीरियड। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो आपके क्या है, ये हॉर्मोन्स के बारे में था, विच इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मेन बात करें, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड आपका ज्यादा हार्मोन सिक्रीशन करने लग जाए, व्हाट विल हैपन देन? आपको एज आपकी बड़ी दिखने लग जाएगी, ग्लैंड्स का डिसफंक्शन हो सकता है, एंड द पेशेंट कैन लीड टू हाइपर हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट, बताओ बताओ,
क्या हो सकता है? स्ट्रेस हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, एंड मेडिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है, जनरली आपके हार्मोन क्या है, प्रोडक्शन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका हार्मोन का इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। जनरली कैंसर में क्या है, जो थेरेपी देते हैं ना वो सर्टेन लेवल ऑफ हार्मोन्स को ट्रिगर करके कहीं ना कहीं मिसलीड कर देते हैं चीजों से। देयरफॉर उसके बाद कई बार पेशेंट जो कैंसर पेशेंट होते हैं ना, तो वो लाइफ टाइम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डिपेंड हो जाते हैं। सिमिलरली लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो मेडिसिन कुछ एक रेगुलेट्स करते हैं। What we need to do, we need to like consult endocrinologist if we are watching any kind of a effect which is related to hormone। ये था आपका सारा किसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इतना किसी को कोई डाउट तो मुझे बताओ। No, ma'am.